दोस्तों, यूरोप के समाज में जो क्रैक्स हैं, जो दरारें हैं, वो उभर के सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में अब अगर आप देखें तो कहीं न कहीं जो अब तक अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स चली है इतने सालों, वो कहीं न कहीं अब बदलती हुई दिख रही है और ज़ाहिर-सी बात है, रिएक्शन देखने मिल रहा है। और इसके साथ यूरोप में अगर आप देखें तो फार राइट लीनिंग पॉलिटिशियंस सामने आ रहे हैं। और उसी में आपको जैसा हमने ऑलरेडी देवव्रत के साथ डिस्कस किया था, जब आपको बताया था कि किस प्रकार से पूरे यूरोप में और वैसे ही अमेरिकाज में एक फार राइट मूवमेंट चल रही है, जहां पे जो पॉलिटिक्स है वो बदल रहा है। और उसी में नीदरलैंड्स में हीट वाइल्डर्स उभर के आए हैं। अब दोस्तों, इनका एक वीडियो है जो कि वायरल हो गया है, जो कि आप देखें तो अखबारों में फ्रंट पेज ऑक्यूपाई करके रखा है, जिसमें वो मुस्लिम्स को साफ साफ कह रहे हैं, गेट आउट, अपने इस्लामिक देश जाओ। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश में कोई बड़े कद का नेता इस प्रकार की बातों को कर दे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन यूरोप में अब ये रोजमर्रा यानी डेली डिस्कोर्स में आपको देखने मिल रहा है, मानो जैसे यूरोप कहीं ना कहीं एक नए क्रूसेड की तरफ जा रहा हो। तो क्या उन्होंने कहा है, उनके वीडियो को सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कह रहे हैं और क्या ये वैसा ही करेंगे, दोनों में क्या होने वाला है। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। een paar rotte appels die het voor de rest van de moslims सबटाइटल आप पढ़ सकते verpesten. हैं। Hou op met het verkondigen van dat onzinsprookje, zeg ik tegen de premier. Dit is een grote meerderheid van 700.000 moslims die onze vrije samenleving verwerpt. En u, meneer de minister-president, heeft met de islam een monster geïmporteerd naar ons land dat ons land in groot gevaar heeft gebracht. Daarom een aantal voorstellen voor de 100.000ste keer, mevrouw de voorzitter, aan het kabinet. 1. Erken dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland hoort. 2. Sluit onze grenzen onmiddellijk voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Zeg Schengen op en voer weer eigen grenscontroles in. 3. Begin met het ontmantelen van de instituties van de islam, zoals moskeeën. En begin bijvoorbeeld met het sluiten van al die moskeeën die buitenlandse financiering krijgen en waar bijvoorbeeld Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, de baas is en niet wij. 4. Sluit iedereen op die met geweld dreigt of geweld gebruikt of zet ze ons land uit en pak die honderden aanhangers en die duizenden sympathisanten van de jihadistische beweging in Nederland, als het moet, preventief op. En 5, voorzitter, vraag alle scholen, kranten, media om een Mohammed-cartoon te tonen. Niet om te provoceren, maar om te laten zien dat wij nooit wijken voor bedreigingen en geweld en dat wij trots en fier achter onze vrijheid staan. Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land. Dit is Nederland. तो दोस्तों, आपने जैसा वीडियो देखा तो इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त जो मतलब जाहिर सी बात है, थोड़ी पुरानी वीडियो है, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं, अपने प्रेडिसेसर को, हो सकता है क्योंकि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कि देखिए सबसे पहले तो आप ये ब्रश करना बंद कीजिए कि कुछ लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पर वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या आईसिस में भर्ती हो जा रहे हैं, तो वो गुमराह लोग हैं। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे धर्म की आइडियोलॉजी ऐसी है। अब हो सकता है दोस्तों, इसको कई लोग इस्लामोफोबिया कहेंगे कि इस प्रकार से आप एक धर्म को इस प्रकार के आइडियोलॉजी से कैसे ब्रश कर रहे हैं। पर अगेन, अब मैं तो कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर इसमें अगेन एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। क्या धर्म को इस प्रकार से ब्रश करना गलत होगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, धर्मों में जो रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, जिनको हमें हटाना पड़ता है। जैसे ही आप देखें तो बाकी धर्मों में भी
नए टेस्टामेंट्स, है ना, वापस से नए प्रकार से नए इंटरप्रिटेशन में टीचिंग की जाती है। क्योंकि इंसानियत की बात करें तो मिडल एजेस जब रहे थे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायलेंस रोज़मर्रा की बात हुआ करती थी। तो उस प्रकार जो नॉर्मल था और आज जो नॉर्मल है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक तरफ तो वो पूरे इस्लाम को ही इस प्रकार से पेंट कर रहे हैं कि इट इज़ अ वायलेंट आइडियोलॉजी। कुछ लोग अगर आतंकवादी बन रहे हैं तो गुमराह नहीं है, वो पालन कर रहे हैं आइडियोलॉजी का, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि भाई जो ओपन बॉर्डर्स है ना यूरोपियन यूनियन के साथ, इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, क्यों क्लोज कर दीजिए ओपन बॉर्डर्स को? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा है इस्लामिक पॉपुलेशन का नीदरलैंड्स में। कितना पॉपुलेशन है आपको अभी बता दूंगा। तीसरा, वो कह रहे हैं कि इस्लामिक संस्थाओं को डिसमेंटल कीजिए, स्पेशली वो मॉस्क्स, है ना, जो कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करते हैं, जिसमें वो तुर्की की बात कर रहे हैं। दोस्तों, तुर्की का बहुत बड़ा रोल है नीदरलैंड्स में। कारण क्या है आपको बताऊंगा। तो तुर्की का जो दियानेट है, बेसिकली उसका एक मिनिस्ट्री है जो कि बाहर में इस प्रकार रिलीजियस अफेयर्स को प्रमोट करती है। तो नीदरलैंड्स में बहुत सारे मॉस्क्स हैं जिसको दियानेट फंड करता है, यानी तुर्की की सरकार फंड करती है। और वो जो मॉस्क्स भी हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसा लगता है वो तुर्की के ज़्यादा कंट्रोल में है कंपेयर टू नीदरलैंड्स की सरकार। नीदरलैंड्स की सरकार में तो खैर कंट्रोल में है ही नहीं, आप देखें तो वो तुर्की का राग अलापती है। नंबर 4 अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जो कोई भी नीदरलैंड्स की भूमि में वायलेंस का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ एक्शन लें। ये तो होना ही चाहिए, है ना। ये जो मोनोपोली ओवर वायलेंस है, ये केवल और केवल एक फीचर, ये जो मोनोपोली ओवर वायलेंस है केवल और केवल सरकार के पास होना चाहिए। यानी सरकार के सिवा और किसी को कभी भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो वायलेंस का रिकोर्स करे, तभी वो स्टेट प्रोटेक्टेड रहेगा। और जब सरकार भी वायलेंस को इस्तेमाल करती है तो दे आर आंसरेबल टू कोर्ट ऑफ लॉ। जो रूल्स है उसके अनुसार ही वो कर सकती है। लेकिन जिस वक्त कुछ तबका आ जाए, वो मॉब वायलेंस करने लगे, वो कानून हाथ में ले ले, तब उस समाज में रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। इसको खत्म करना है तो क्या करना होगा? वो सब कोई जो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ टफेस्ट एक्शन होना चाहिए। ये नंबर 4 कह रहे हैं। नंबर 5 ये कह रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद हैं, उनके कार्टून्स बनाए स्कूल में, न्यूज़पेपर्स में। इसके द्वारा वो कह रहे हैं कि हम प्रोवोक नहीं करना चाह रहे, पर बताना चाह रहे हैं कि हम फ्री स्पीच है हमारी और उसका हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये क्या है कि ये जो समाज है, यूरोपियन सोसाइटी है, दे आर फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट्स। क्या मतलब होता है कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच होगी टू दी एक्सटेंट। हो सकता है कोई कहे कि मेरे जो धार्मिक जो फीलिंग है वो हर्ट हो रही है। कुछ नहीं, अगर मैं सिर्फ बोल ही तो रहा हूं तो इतना हर्ट अगर हो रहे हो तो हो जाओ, तुम हो सकते हो। कुछ उसी प्रकार से ही कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद का भले हो, उनका कार्टून वो भी ड्रॉ कर देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो बेसिकली ये वही कहना चाह रहे हैं कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट सोसाइटी है तो हम उसी को एक्सरसाइज करेंगे। जो फाइनल मैसेज इन्होंने दिया है वो बड़ा जबरदस्त है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। वो कह रहे हैं वो सारे मुस्लिम्स जो नीदरलैंड्स में रह रहे हैं, जो हमारे फ्रीडम, जो हमारे डेमोक्रेसी, जो हमारे कोर वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिनको लगता है कुरान के रूल्स सेक्युलर नीदरलैंड्स के लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो कह रहे हैं ये इक्के दुक्के नहीं है, 9 लाख जो आप देखें मुस्लिम्स रहते हैं नीदरलैंड्स में, उसमें से 7 लाख ऐसे हैं। और इसके लिए प्रोफेसर कुम्पांस के रिसर्च को कह रहे हैं। अब ये कौन है मैं नहीं जानता, पर वो कह रहे हैं रिसर्च बाय प्रोफेसर कुम्पांस कहते हैं या कुम्पांस कहते हैं कि 9 लाख में 7 लाख मुस्लिम्स जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, दे वैल्यू कुरान ओवर दी रूल ऑफ नीदरलैंड्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीदरलैंड्स। तो उन लोगों को साफ साफ कहा गया है कि देखिए, गेट आउट, लीव फॉर एन इस्लामिक कंट्री। नीदरलैंड्स में रहना है तो नीदरलैंड्स के कानून का पालन करना है, नीदरलैंड्स के कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखना होगा। अगर आप कुरान को सर्वोपरि रखते हैं तो किसी इस्लामिक देश चले जाएं, वहां पर कुरान इज सर्वोपरि। तो ये वो कह रहे हैं। दोस्तों, ये बात अगर कोई भारत में कर दे तो भारत में भी आई एम प्रीटी श्योर बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होंगे, बट हाँ तबका है जो आए दिन इस प्रकार से वायलेंस स्ट्रीट पर लेते हैं, जो स्ट्रीट पर शो करते हैं। तो वो भी कुछ वैसा ही तबका है जो कि
कुरान को ऊपर वैल्यू करते हैं कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरफ आप समझ कर सकते हैं, रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप नीदरलैंड्स की बात करें तो अब यहाँ की डेमोग्राफी देखते हैं, क्यों यहाँ पे तुर्की इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हम नीदरलैंड्स में देखें ना तो जो तुर्क्स हैं वो सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप है। डच, एथनिक डच के बाद सबसे बड़ी संख्या में नीदरलैंड्स में जो रहते हैं वो तुर्क्स हैं, और ये सभी के सभी मोर और लेस, नॉट ऑल, 95%, 99% ऑफ देम आर सुन्नी मुस्लिम्स। दोस्तों ये 10 लाख के करीब की संख्या है, और ये 5% होगी तो 10 लाख करीब होगी। क्योंकि होता क्या है, नीदरलैंड्स में हमारे देश जैसा तो है नहीं कि कौन जात बा करके चलते हैं लोग, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो जाता है जहाँ, नहीं, वहाँ वैसा नहीं होता है। वहाँ पर केवल और केवल वहाँ पे धर्म के बारे में भी लोगों से पूछा नहीं जा सकता जब सेंसस होता है। तो नंबर्स इसलिए क्लियर नहीं है। 5% हुआ तो करीबन 9 लाख होंगे, 10% हुआ तो आपको मालूम है ये 20 लाख से 18 लाख की संख्या होगी। तो बहुत बड़ी संख्या, जनसंख्या है तुर्किश पॉपुलेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो तुर्किश ओरिजिन या तुर्किश डच हैं, तो उनकी बात है तो उनमें एक डर है जब से हीथ वाइल्डर्स मेजॉरिटी पा चुके हैं। अब दोस्तों मेजॉरिटी का मैक्सिमम वोट शेयर पा चुके हैं। दोस्तों जो डच कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें यही फियर है कि डच कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए रिलीजियस कम्युनिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करता है जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन अगर वाइल्डर्स ने एमेंड कर दिया तो तुर्किश नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो नीदरलैंड्स में काम करती है उनका कहना है कि अब तो हम पर प्रेशर बढ़ने वाला है। ये जो रेटोरिक है, ये जो तुर्किश कम्युनिटी है, ये तुर्किश सरकार का एक्सटेंडेड आर्म है, उन पर तो अब एक्शन होने वाला है, उसका क्या होगा। तो एक फियर भी है, पर दोस्तों ये कह रही है कि एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सबसे पहले तो देखिए वाइल्डर्स, भले हीथ वाइल्डर्स आप देख सकते हैं 37 सीट्स पा लिए हैं, लेकिन 76 सीट्स चाहिए मेजॉरिटी में। नीदरलैंड्स में आपको बता देता हूं 76 की 76 सीट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आती है। वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, तो हमेशा मिली जुली सरकार ही बनती है। तो यहाँ पे ये 37 सीट्स ही पाए हैं, तो अभी भी अगर आप देखें तो 76 सीट्स चाहिए, यानी 39 और सीट्स चाहिए होंगे। तो वो कहाँ से आने वाले हैं? तो सबसे पहले तो कोलिशन पार्टनर को लाना होगा, और जिस प्रकार से हीथ वाइल्डर्स का रुख है जो कि फार राइट के तरफ है, कई पार्टनर्स होंगे जो इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद अगर वो सरकार बना भी लेते हैं तो वाइल्डर्स अकेले तो लॉज को नहीं बदल सकते, इनको कोएलिशन पार्टनर्स की भी मदद चाहिए होगा, तभी बिल पास करेगा। तो हो सकता है अन्य पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार से जो वाइल्डर्स कह रहे हैं कि हम वापस भेज देंगे, है ना, माइनॉरिटीज के राइट्स को कर्टेल करेंगे, तो वो ऐसा होने ना दें, वो उनको रिस्ट्रेन कर दें। इसके सिवा ऐसा भी देखा गया है अक्सर पॉलिटिशियंस इन सब प्रकार की जो बातें होते हैं ये चुनाव के पहले ही वो करते हैं। चुनाव एक बार खत्म हो जाता है, जो इमोशंस होते हैं वो टेम्पर डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद वाइल्डर्स क्या करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। जॉर्जिया मेलोनी के बारे में भी कहा जा रहा था, चुनाव के पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन एक बार सरकार बन गई, वो भी सरकार में उतना रेडिकल रिफॉर्म या रेडिकल चेंजेस नहीं ला रही वहाँ के गवर्नमेंट में, वहाँ के सिस्टम में। तो हो सकता है ये भी वैसे ही टोन डाउन कर जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा, तो भारत संवाद को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल है ये, इसको लाइक करें, चैनल वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और भारत संवाद को जरूर सब्सक्राइब करें।